So in the last lecture, we have seen the case for electron pairs 5 and for the case electron pairs 4, bond pairs 2, lone pairs 2. ये वाला देखा है ना हमने. When the bond pairs 2 and the lone pairs are 2, the shape becomes bent V or angular. The geometry will remain tetrahedral. अगर electron pairs 4 है तो the geometry will be tetrahedral. Shape will change because of the lone pairs. Okay. Electron pairs 5 के केस में, if all of them are bond pairs, the geometry is trigonal bipyramidal and the shape is also trigonal bipyramidal. अभी के लिए हमने कुछ लोन पेयर से रिप्लेस तो नहीं किया. इस पर्टिकुलर क्लास में देखेंगे अगर लोन पेयर्स रहा तो क्या होगा. In this case, we have defined two different sets of bonds. The bonds which are present in the plane, they are treated as equatorial bonds, and जो perpendicular है plane के, they are treated as axial bonds. And these two are of different natures because equatorial bonds के बीच में bond angle जो है, it is 120 degrees. Axial और equatorial के बीच में bond angle is 90 degrees. So इन दोनों में repulsive forces ज़्यादा है when compared to the repulsive forces among the equatorial bonds. So in order to minimize the repulsive forces, the bond length of axial bond becomes greater when compared to the bond length of the equatorial bond. Bond length बढ़ने की वजह से वो जो electrons है, they will be drifted far from this particular bond pair and the repulsive forces will be decreased. और दूसरा चीज क्या कर सकते हैं? By putting an electronegative element on the axial position. Electronegative element रहने की वजह से क्या होगा? Again, electronegative element pulls the shared pair of electrons more towards itself. और पास में जाने की वजह से फिर से bond pair और bond pair के बीच में, ये दोनों के बीच में distance बढ़ेगा और repulsive forces घटेगा. Okay, these are the two things which you need to remember: bond lengths and the placement of the elements. Okay, this is another representation of trigonal bipyramidal geometry. इसमें ये तीन जो है ये plane में है. And this is going into the plane and this is coming out of the plane. Okay. Okay. Let's go to the next case. यहाँ तक सभी लोग को clear है ना? I'm going to the next case. अभी हमने bond pairs 5, lone pair 0 देखा. Let us take bond pairs as 4. एक lone pair हो गया. Representation will be AB4L. Okay. करना क्या है हमको? What will be the geometry? Trigonal bipyramidal. पहले इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमने एग्जांपल्स देखा. ओके, एग्जांपल्स देखा. The geometry will be same. Yes. It will be trigonal bipyramidal. So उसी geometry को ड्रॉ करेंगे. You have A, B, आप लोग मुझे ये बताओ. Now you have two choices to keep the lone pair. हमारे पास जो lone pair है, you can put the lone pair in axial position or you can put the lone pair in the equatorial position. आप लोग को क्या बेटर लग रहा है? एक्सियल पोजीशन पे रखना चाहिए मुझे लोन पेयर या इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना चाहिए? बिकॉज दीस टू आर टू डिफरेंट पोजीशंस. One is at a bond angle of 90 degrees with this bond pair and the other is at a bond angle of 120 degrees with this bond pair. According to you, where should I place the lone pair? Should I place it on the axial position or on the equatorial position? इक्वेटोरियल. Okay. कुछ लोग इक्वेटोरियल बोल रहे हैं, कुछ लोग एक्सियल बोल रहे हैं, या कुछ लोग को एक्सियल लग रहा होगा, कुछ लोग को इक्वेटोरियल लग रहा होगा. एक बार एवरीवन कंसंट्रेट. सपोज मैंने एक्सियल पे रख दिया, बॉन्ड पेयर यहाँ पे, लोन पेयर यहाँ पे. ओके, सो दिस पर्टिकुलर लोन पेयर is experiencing repulsive forces with these three bond pairs and the angle with them is 90 degrees. इस बॉन्ड पेयर के साथ एंगल 180 डिग्री है, ठीक है. But with these three bond pairs, the angle is 90 degrees.
दूसरा सिचुएशन देखते हैं, ये एक सिचुएशन हुआ। दूसरा सिचुएशन में कीप द लोन पेयर इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड लेट अस ऑब्जर्व द एंगल्स। यहाँ पे लोन पेयर रखा। नाउ टेल मी द बॉन्ड एंगल्स विद द बॉन्ड पेयर्स। यहाँ पे दिस लोन पेयर इज एट अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्रीज विद दिस बॉन्ड पेयर एंड इसके साथ भी 120 डिग्रीज है, इन दोनों के साथ 90 डिग्रीज है। इधर क्या हो रहा है, तीन बॉन्ड पेयर्स के साथ 90 डिग्रीज है, एक के साथ 180 डिग्रीज है। आउट ऑफ दीज टू सिस्टम्स आप लोग को कौन सा सिस्टम थोड़ा बेटर लग रहा है? In this case, with two bond pairs, the angle is 120 degrees, and with two bond pairs, the angle is 90 degrees. इसके साथ 90, इसके साथ 90. In this case, तीन के साथ 90 है, एक के साथ 180. What do you think is the better system for minimum repulsive forces? Second. This is the better system. ये 120 डिग्री है ना, दो के साथ 120 डिग्री और दो के साथ 90 is better, क्योंकि इधर तीन के साथ 90 है, repulsive forces will be highest. ओके, सो ये वाला सिस्टम जो है ये नहीं होगा। दिस इज द प्लेसमेंट व्हिच वी विल एक्सेप्ट। द लोन पेयर, रिमेंबर, ऑलवेज पुट द लोन पेयर इन इक्वेटोरियल पोजीशन, in trigonal bipyramidal geometry. Is this clear? हाँ सर। ओके, ठीक है। शेप के लिए थोड़ा देखते हैं। सो ज्योमेट्री is again trigonal bipyramidal. इसके अलावा लोन पेयर is placed in equatorial position just to minimize the repulsions. Okay, if you are making one of the lone pair as A, B, lone pair ऐसा कुछ दिखेगा, bond B और B. Tell me the shape of this. कैसे दिख रहा है आप लोग को ये वाला शेप? Please visualize the shape. This shape is called as seesaw. The shape is seesaw. जो पार्क्स में रहता है ना seesaw, ऐसा कुछ विजुअलाइज करो। ये वाला वो जो सपोर्ट के लिए रहता है एंड यहाँ पे यू कैन सिट एंड प्ले। ओके, दिख रहा है ऐसा कुछ? ये ऐसा है एंड ये इसके ऊपर है। सो दिस इज लाइक सीसॉ। कैन यू विजुअलाइज दैट? सर आदमी जैसा भी दिख रहा है। सॉरी, आदमी जैसा भी दिख रहा है। आदमी जैसा इसलिए आप लोग को दिख रहा है क्योंकि ये आपको हेड जैसा लग रहा है। ये हेड नहीं है, ये लोन पेयर है, इसको देखना ही नहीं हमको। इनफैक्ट इसको शो ही नहीं करेंगे। ये आदमी जैसा लग रहा है क्या? नहीं ना। प्लीज सी दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये एक पार्ट है जो नीचे रहता है ना सपोर्ट के लिए, एंड ये उसके ऊपर प्लैंक जैसा है। सो यहाँ पे यू कैन प्लेस वन बच्चा, यहाँ पे यू कैन प्लेस वन बच्चा एंड सीसॉ जैसा। समझ में आ रहा है? Please try to visualize this. Okay, so this particular shape is called as seesaw. Okay, we will not show lone pair in general. मैं आपको बता रहा हूँ बस अंडरस्टैंडिंग के लिए।
ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल SF4 P PCl4 minus TeCl4. सल्फर जो है इट इज ऑक्सीजन फैमिली. ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो सल्फर के भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 6 होंगे. Out of those 6 electrons, 4 electrons are utilized for 4 fluorine atoms. So 2 electrons are left. 2 electrons मतलब 1 lone pair. Okay. So you have 6 electrons. So 6 electrons में से 4 electrons bonding में गया. So 2 electrons बचा. इसका मतलब 1 lone pair है. Number of side atoms कितना है? 4 side atoms. So you have 4 bond pairs. So you have 4 bond pairs and 1 lone pair. The geometry will be trigonal bipyramidal. उस particular geometry में आप लोग उनको arrange करेंगे. If you are seeing the shape of it, the shape we will see that as seesaw. Okay. Again, sulfur. टेट्राहेड्रल शेप क्यों नहीं बोल सकते? इसको tetrahedral बोलेंगे नहीं. ये tetrahedral नहीं है exact. सर शेप शेप को ही बोल रहा हूँ. दिस इज नॉट टेट्राहेड्रल. 2 बॉन्ड्स ऐसा है. वन ऑफ द बॉन्ड टेट्राहेड्रल में एंगल 109 डिग्रीज ऐसा कुछ रहेगा ना. हियर द एंगल्स आर डिफरेंट. इन दैट केस द एंगल्स अमॉन्ग ईच एंड एवरी बॉन्ड पेयर आर सेम. 109 पॉइंट समथिंग रहेगा ना. इधर देखो, this is 120 degrees इनके बीच में, and इनके बीच में the angle is 90 degrees. Now the angle is changing. Please again try to visualize this. ये जो bond है, this is going into the plane, and this particular bond is coming out of the plane. Okay. ये दोनों support जैसा है. यहाँ पे एक, so ये दोनों bonds plank जैसा है. So you can 3-dimensional में draw किया मैंने ये. You can put one kid here, put one kid here, and ये वाला ऊपर नीचे जाएगा ना. ये सपोर्ट है. थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए. Okay. This bond is going into the plane. This bonding is coming out of the plane, and ये दोनों bonds plane में है. Let us comment on angles. We will not call this tetrahedral. एक बार angle देखते हैं. इन दोनों के बीच में angle क्या रहेगा? What will be the angle? 120 नहीं रहेगा. 120 से थोड़ा कम होगा, because lone pair bond pair जो repulsive forces है, those will be greater when compared to bond pair. उसके वजह से उन दोनों के बीच में एंगल बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में एंगल घटेगा. So this will be less than 120 degrees. Okay. इन दोनों के बीच में 90 degree. it will be less again less than 90 degrees. ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होंगे ना. So ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल है, इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज. सो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, इट विल बी लेस देन 90 डिग्रीज. ओके. ओके. बाकी बचा हुआ एग्जांपल्स भी देखो. फास्फोरस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 5 है. whenever you have charge, always take the charge on the central atom. So ये जो नेगेटिव चार्ज इसको दिया तो 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन्स हुआ. 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 क्लोरीन्स के लिए 4 गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा, 1 लोन पेयर एंड 4 साइड एटम्स, मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स, टोटल 5 हुआ. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, एक लोन पेयर हो जाने की वजह से इट इज कॉल्ड एज seesaw shape. TeCl4, tellurium, again oxygen families, outermost electrons are 6, 4 electrons are participating in bonding, 2 electrons are left, 1 lone pair and 4 bond pairs. Shape is seesaw. Everyone, is this clear? Let's go to the next case.
अभी बॉन्ड पेयर्स जो है, make the bond pairs as 3 and put the lone pairs as 2. Symbol will be AB3L2. तो सभी मॉलिक्यूल के लिए सेम एंगल रहता है. सभी मॉलिक्यूल के लिए सेम नहीं रहेंगे. It depends upon the side atoms. It will be less than 90 degrees. सभी मॉलिक्यूल के लिए सेम रहता तो वो जो एंगल कितना होता है मैं आपको वो वैल्यू दे देता होगा ना. Why am I referring to less than 90? If there is one specific angle, वो मैं मुझे आप लोग को मेंशन कर ही लेता. It depends upon the side atom. Yes. Size of the side atom, उसका electronegativity, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है. We will see those factors too. किसके on what basis those bond angles will differ. Next AB2L2. अभी फिर से हमको क्या करना है? If you are putting the lone pair, everyone concentrate. If you are putting the lone pair on the axial position, lone pair के बीच में bond angle तब कितना आएगा? 90 बनेगा. If you are putting the lone pair in equatorial position, तब lone pair के बीच में bond angle कितना होगा? 120 होगा. Which is better, 120 या 90? 120. So where will we keep the lone pair? Equatorial. Very good, in the equatorial position. So it will be A, B, यहाँ पे एक lone pair, यहाँ पे एक lone pair. Okay. Again, what will be the bond angle between these two? 90. Less than 90. Less than 90. क्योंकि ये lone pairs जो है repulsive forces घटाने के लिए पुश करेंगे ना. इन दोनों के बीच में bond angle बढ़ जाएगा, इन दोनों के बीच में घट जाएगा. Similarly, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? The angle will be less than 90 degrees. Okay, very good. What is the shape? What is the shape? कैसे दिख रहे हैं? T. Triangle T shape. Very good, very good. It is T shape. Shape के लिए आप लोग lone pairs मत दिखाओ. So it will be A. यहाँ पे एक bond pair, यहाँ पे एक bond pair, यहाँ पे एक bond pair. T जैसा लग रहा है ना? यहाँ one lone pair here, one lone pair in this direction. The shape is T shape. I'll give you examples. Please cross check. ClF3, BrF3. क्लोरीन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है. हर एक फ्लोरीन का भी 7 है. हर एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 3 फ्लोरीन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लगेगा. सो क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे तो बॉन्डिंग में यू आर लेफ्ट विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर्स हो गया एंड नंबर ऑफ साइड एटम्स आर 3. सो बॉन्ड पेयर्स आर 3. 2 lone pairs and 3 bond pairs. The shape is T shape and the geometry is trigonal bipyramidal. Okay. Next case. Number of bond pairs are 4. Sorry, number of bond pairs are 2 and the lone pairs are 3. It will be AB2L3. और जो बचा हुआ लोन पेयर है उसको कहाँ पे रखेंगे? अभी 2 लोन पेयर्स को ऑलरेडी हमने इक्वेटोरियल लगा. Okay, even the third lone pair will be kept in equatorial position because the angles will be 120, 120, 120 degrees. Okay, so you have A, B and B. यहाँ पे एक lone pair, यहाँ पे एक lone pair, यहाँ पे एक lone pair. Now tell me the bond angle between these two. इन दोनों के बीच में बताओ.
180. less than 180. लेस देन 180 नहीं रहेगा, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 180. 180. अभी ये जो लोन पेयर से ऊपर के बॉन्ड पेयर को पुश करने के लिए कोशिश करेंगे, नीचे के बॉन्ड पेयर को भी पुश करने के लिए कोशिश करेंगे, नेट में बैलेंस हो जाएगा. ओके, नेट में बैलेंस हो जाएगा. सर अब फॉर एग्जांपल्स में भी उन दो बॉन्ड्स में एंगल 180 ही रहेगा. इन दोनों बॉन्ड में एंगल 180 नहीं रहेगा, क्योंकि ये इस साइड पुश किया ना, लेस देन 90 हो गया. सो इन दोनों के बीच में इट विल बी लेस देन 180. ओके सर. यहाँ पे ऐसा कुछ सोचो, अगर ये जो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को पुश कर रहे तो मतलब एंगल ग्रेटर देन 90 करवा रहे, तब इन लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल लेस देन 90 हो जाएगा ना. सो ये लोन पेयर्स भी इसको पुश करने के लिए कोशिश करेंगे. सो नेट में ये यहाँ पे ही रहेगा, बीच में ही रहेगा, एंड इसके लिए भी नेट में फोर्स विल बी 0. इन दोनों, ये इस साइड पुश करेगा, ये इस साइड पुश करेगा, सो नेट में ये यहाँ पे ही रहेगा. सो ये स्ट्रेट ही दिखेगा आप लोग को. द बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्रीज. व्हाट इज द ज्योमेट्री? What is the geometry? Trigonal bipyramidal. It will be trigonal bipyramidal. What is the shape? linear. Linear. Very good. The shape is linear. So even if you have two bond pairs के केस में भी हमको linear आया था ना, 0 lone pairs and 2 bond pairs. यहाँ पे even though if you have 5 electron pairs out of which only 2 are bond pairs and 3 lone pairs, उसमें भी हमको linear shape मिलता है. Linear. Okay? Example. Br3 minus I3 minus XeF2. अभी Br3 minus में take one of the Br as central atom. Out of 3 bromine atoms, एक bromine atom central atom हो गया. बचा हुआ 2 bromine atoms, they are side atoms. So एक bromine atom central atom हुआ तो bromine के outermost electrons कितने हैं? 7. Out of those 7 electrons, अभी हम Br3 minus का मतलब क्या है? और एक इलेक्ट्रॉन दिया. Now the outermost electrons are 8. 8 electrons में से 2 bromines बचा है ना? हर एक ब्रोमीन के लिए 1 चाहिए, 2 ब्रोमीन्स के लिए 2 चाहिए. So you are left with 6 electrons, which is nothing but 3 lone pairs. Number of side atoms कितना है? 2 bromine atoms है ना साइड में. So you have 2 bond pairs. 2 bond pairs, 3 lone pairs. The geometry is trigonal bipyramidal. Shape is linear. I3 minus में भी वैसा ही होगा. XeF2. Xenon का outermost electrons 8 है. हर एक फ्लोरीन के लिए 1 चाहिए, 2 फ्लोरीन के लिए 2 चाहिए. So 8 minus 2, 6 electrons. 6 electrons मतलब 3 lone pairs. 3 lone pairs, again 2 side atoms, 2 bond pairs. Geometry is trigonal bipyramidal. Shape is linear. Any doubt? Any doubt? No sir. No sir. Okay. अभी ये I3 माइनस इस कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन आता है. आयोडीन जो है प्योर आयोडीन डजंट डिसॉल्व इन वाटर. हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा लाइक डिसॉल्व्स लाइक करके, मतलब पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ओके, अभी ये जो I2 है is I2 polar or non polar? Polar. Polar. I2 is non polar. आयोडीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही कहाँ है? If there is no electronegativity difference, अभी वो जो particular shade pair of electrons है, those will be placed at the center. There won't be any charges, so it is non-polar. Okay, so if iodine is non-polar, can it dissolve in water? No.
नो सर। तो ये जो प्योर I2 है, प्योर I2 does not dissolve in water as it is non-polar. Whereas if it is dissolved in solution of Ki potassium iodide, it gets dissolved. It gets dissolved due to formation of I3 minus. ओके अगर आयोडीन को डिसॉल्व करने के लिए कोशिश किया तो डिसॉल्व नहीं होता है बीइंग नॉन पोलर, बट आयोडीन को Ki सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि Ki सॉल्यूशन में यू हैव K पॉजिटिव एज वेल एज I माइनस, सो जो I2 है it will react with I minus to form I3 minus. ये नेगेटिवली चार्ज है ना, सो इट विल बी डिसॉल्व्ड I3 माइनस सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, एंड I2 जो है I माइनस के साथ रिएक्ट होने की वजह से I3 माइनस बना। आया समझ में? यस सर। ओके ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये सारे यूजफुल रहेंगे। नेक्स्ट केस, कैन वी हैव ए केस ऑफ बॉन्ड पेयर 1 एंड लोन पेयर 4? कैन वी गेट ए केस bond pair 1 and lone pair 4? No, sir. Everyone No, listen. sir. नो सर। हाँ एवरीवन एक बार सुनो। लोन पेयर 4 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गया? 8 हो गया। मैक्सिमम आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 है NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन में। if all the 8 electrons are lone pairs, तब बॉन्ड पेयर कौन बनाएगा? बॉन्ड पेयर 1 का केस कभी नहीं बनेगा। बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर 4 एक केस कभी एग्जिस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर if all the 8 electrons are not participating in bonding, there is no electron left for formation of bond pair. Okay, so we will not have the case bond pair 1 and lone pair 4. So next case खेलते हैं, next case के लिए जाएंगे, which is number of electron pairs are 6. Number of electron pairs are 6. इसमें फर्स्ट कंडीशन पहले क्या देखते हैं हम? सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 0. lone pairs are 0. The representation will be AB6. बॉन्ड पेयर्स 5 है तो हमने क्या किया? 3 को प्लेन में रख के we have placed 3 bonds in the plane and 2 bonds perpendicular to the plane. So in case of bond pairs is equals to 6, what we do is we will keep 4 bonds in one plane and 2 bonds perpendicular to it. मतलब ऐसा कुछ A, B, B, yeah, this particular geometry, what can you name this geometry as? हेक्सागोनल। टेट्रागोनल बाइपिरामिडल। टेट्रागोनल बाइपिरामिडल नहीं, ये जो बेस है, दिस बेस इज स्क्वायर, सो इट इज स्क्वायर बाइपिरामिडल। ओके,
या यू कैन से टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, वो भी सही है। जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है वैसा ही टेट्रागोनल बाइपिरामिडल जैसा कुछ बोल सकते हैं, बट वी विल कॉल दिस एज स्क्वायर बाइपिरामिडल। Okay, this is square bipyramidal. What are the angles? इन दोनों के बीच में एंगल बताओ। What is the angle? 90 degree. 90 degrees. 90 degrees. And इन दोनों के बीच में bond angle, this is also 90 degrees. Yes, sir. Okay, so इस particular case में we will not have two different sets of bonds because the bond angles are same. We will not say the bonds which are present in the plane as equatorial bonds and the bonds which are present perpendicular to the plane as axial bonds. In this context, there are no two different types of bonds, equatorial and axial. All the bonds are equivalent because the bond angles are same. Okay, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने ये चार जो है इसको एक प्लेन में रखा and these two bonds are perpendicular to the plane. You can also show this as A, B, B. Everyone, please observe. If I connect these four things, अगर ये चार को कनेक्ट किया तो अब देखो ये चार एक प्लेन में जैसे लग रहे हैं और these two are perpendicular to the plane. वैसा you can also connect these four things. Then you will see these four in one plane and these two are perpendicular. समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. ओके, एक बार फिर से। अभी हमने ये जो छह है ये छह में ये चार को कनेक्ट किया and we have taken all these four as one, these four atoms in one plane and these two atoms perpendicular to the plane. Similarly, you can connect any four atoms. ये जो चार एटम्स है ना, ये चार एटम्स को एक प्लेन में कंसीडर करके तब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा. ओके, जैसे आप लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, जैसे आप लोग उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, उसके हिसाब से वो जो एटम्स प्लेन में रहेंगे वो भी चेंज कर सकते हैं. You can take these four atoms in one plane and these two atoms perpendicular to the plane. और एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकता हूं मैं. In this case, you can mark these four in one plane. Okay, now these two are perpendicular to the plane. दिख रहे? So this particular geometry is also called as the most commonly used term. The most commonly used term is octahedral. What is meant by hedra?
It is called as octahedral. What is meant by hedra? Hedra मतलब plane या surface. Octa मतलब 8. You can form 8 faces or 8 surfaces or 8 planes using 6 atoms. देखो everyone concentrate. Everyone please concentrate. इस एटम इनको जोड़ो तब एक ट्रायंगुलर सरफेस इधर मिलेगा. वैसा ही ये एटम इनको जोड़ा तो इधर एक ट्रायंगुलर सरफेस. सिमिलरली इन तीन को जोड़ा तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सरफेस. वैसा ही पीछे ये 3 एटम्स को जोड़ा तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सरफेस. सो ऊपर आपको ऐसा 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस मिला. वैसा ही नीचे भी 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस मिलेंगे इस एटम के वजह से. Okay, so upper you have 4 planes, niche you have 4 planes, hence it is called as octahedral. Oct matlab 8, hedra matlab planes. Take these 3 atoms, ये वाला, इनको जोड़ो, तब आपको एक triangular surface मिलेगा. Similarly, these 3 atoms, इधर एक triangular surface, यहाँ पे एक triangular surface, यहाँ पे एक triangular surface. Okay. ऊपर एक 4 surfaces, नीचे एक 4 surfaces. So in total you have 8 planes. You can have 8 planes geometry with the help of only 6 atoms. Is this clear? Yes, sir. Or it is also called as square bipyramidal. A square है, ऊपर एक pyramid, नीचे एक pyramid. Square bipyramidal. I hope this is clear to everyone. What are the bond angles? The bond angles are 90 degrees. Okay. Example. SF6 PCl6 minus ASCl6 minus SbCl6 minus PF6 minus SnCl6 2 minus XeO2F4. Sulfur के outermost electrons 6. All the 6 electrons are participating in bonding for 6 fluorine atoms. No lone pairs, 6 side atoms. So the shape or geometry will be octahedral. In this case, both shape as well as geometry दोनों same होगा ना? Both shape and geometry will be same, and it is square bipyramidal or octahedral. Again, phosphorus का outermost electrons 5 है, minus मतलब एक electron add हो गया, 6 electrons हो गया. All the 6 electrons are used for bonding of 6 chlorine atoms. Again, octahedral. SnCl6 2 minus. Sn carbon family है, carbon के outermost electrons 4 है, 2 minus मतलब out 2 electrons दिया. So now you have 6 outermost electrons. All the 6 electrons are participating in bonding with 6 chlorine atoms. So no lone pairs left. Okay. XeO2F2. Xenon outermost electrons कितने हैं? 8. Xenon outermost electrons are 8. हर एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 2. So 2 ऑक्सीजन के लिए 2 into 2 4 हो गया. हर एक फ्लोरीन के लिए 1 चाहिए, 4 फ्लोरीन के लिए 4 हो गया. So 4 plus 4 total 8 electrons हो गया. All the 8 electrons are participating in bonding. Number of side atoms कितना दिख रहा है आप लोग को? 6. So it will be octahedral. Okay. Your wish, you can place fluorine and as well as oxygen कहीं पे भी रख सकते हो आप लोग. इधर देखो. You can mark the example as xenon. Fluorine, 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. इधर आप लोग ऐसा दिखा सकते हो, यहाँ xenon, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. इनको प्लेन में दिखा सकते हो. फ्लोरीन, फ्लोरीन,
fluorine, fluorine. Okay, any of them is valid, same ही है, because there are no two different sets of bonds. Axial और equatorial जैसा कुछ नहीं है ना, कैसे भी मार्क कर सकते हो आप लोग. Is this clear? Yes, sir. Okay. Next, let us see what happens if there is lone pair. B part, when the number of bond pairs are 5, lone pairs are 1, AB 5, L. आप लोग बताओ, लोन पेयर को मैं यहाँ पे दिखाऊं या यहाँ पे दिखाऊं? कहाँ पे दिखाऊं? यहाँ पे दिखाऊं या यहाँ पे दिखाऊं? या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क नहीं पड़ेगा because all the bond angles are equivalent. So you can place the lone pair यहाँ पे या you can put the lone pair यहाँ पे. It doesn't make any difference. Okay. But convenience के लिए वो geometry और shape वो shape determine के लिए convenient रहेगा. If you are placing that on the axis. Geometry is again octahedral. Let us see what will happen to shape. A यहाँ पे लोन पे रख रहा हूँ. Okay. Can anyone tell me what is the shape of this particular molecule? Shape के लिए क्या करना है? Don't show. Square pyramid. Very good. It is square pyramidal. So ये जो चार है, ये एक प्लेन में है, ऊपर एक बी, नीचे लोन पेयर को शो मत करो. Okay, if you are joining these things. Okay. दिख रहा है ना? pyramid जैसा. And the base is square, hence it is called as square pyramidal. Square pyramidal. What is the angle between these two? Less than 90. Very good. It is less than 90 degrees. Okay. ऐसा क्यों हुआ है? Because इधर देखो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में the bond angle must be more when compared to the bond pair in order to minimize the repulsive forces. So ये दोनों के बीच में bond angle greater than 90 हो जाएगा. इनके वजह से इनके बीच में bond angle less than 90 हो जाएगा. Okay? Clear है? Yes, sir. Okay. What is the bond angle between these two? Greater than 90. It can never, it won't be greater than 90. 90. ठीक है, बहुत लोगों को 90 लगता है ये, but this is also less than 90. Very, 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 very important. अभी एक बार ऐसा कुछ सोचो आप लोग, ये लोन पेयर नहीं है तो मान लेते लोन पेयर नहीं है. ये जो इनिशियली प्लेन में है ना, लोन पेयर आने की वजह से क्या हो रहा है? These bond pairs and loan pairs, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 90 होगा ना. So these bonds थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ऐसा ऊपर उठना पड़ेगा. Whenever you are bending them, whenever you are changing their position, क्योंकि you need to make this particular bond angle greater than 90. So उनको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा ना.
ड्यूरिंग दैट टाइम इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज्ड, दे विल बिकम लेस देन 90। आप लोग एक्सपेरिमेंट करो, चाहिए तो 4 पेन्स पहले प्लेन में रखो एंड टेक देम अपवर्ड्स, मूव देम अपवर्ड्स। व्हेनेवर यू आर मूविंग देम अपवर्ड्स, अभी भी ये बी 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 प्लेन में रहेगा, बट ये जो बॉन्ड से ऊपर होगा ना, इनके बीच में तो बॉन्ड एंगल इट विल बी डिक्रीज्ड। यू कैन नॉट मेंटेन a 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, इट विल बी डिक्रीज्ड, लेस देन 90 हो ही जाएगा। टेक 4 पेन्स, इनिशियली वो प्लेनर है, नाउ ट्राई टू मूव दोस पर्टिकुलर 4 पेन्स अपवर्ड्स, then the bond angle between them will be decreased and it will be less than 90 degrees। मैथमेटिक्स से विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो और एक तरीके से बताता हूँ। देखो ये जो 4 है, इन 4 को प्लेन में कंसीडर करो। एवरीवन टेक दीज 4 इन वन प्लेन। इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा? लेस देन 90 हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन 90 हो जाएगा। सो इधर शिफ्ट हुआ तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली लेस देन 90 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई एडवांस में एक बार पूछा है। इन स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री और इन स्क्वायर पिरामिडल शेप, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स विच आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। बहुत सारे लोगों को ये प्लेन में जो भी है ना, इनके बीच में 90 डिग्रीज लगा, सो 1 2 3 4 आंसर 4 मार्क करके आया। ये इंटीजर टाइप में आया था ये क्वेश्चन, बट आंसर एक्चुअल में कितना होगा? 0। ओके, द आंसर इज 0, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स, BR-F5, CL-F5, XCO-F4, ICL-5। ओके, सो एक क्वेश्चन ऐसा ही आप लोग को दे रहा हूं। हाउ मेनी एंगल्स angle F BR-F are equal to 90 degrees in BR-F5? कितने होंगे? What is the answer? 0. 0. Okay. Okay. Next case, if the bond pairs are, yeah, any question? Okay. Next case, if the bond pairs are 4 and the lone pairs are 2. First of all, tell me, is that particular case possible? Bond pairs 4 होना चाहिए, lone pairs 4 है। No sir. Possible है? No sir. एक केस पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? लोन पेयर्स 4 कर लिया क्या? सॉरी, लोन पेयर्स 2 ना, एक कटाना है, एक बढ़ाना है। लोन पेयर्स 2। Sir, you said lone pairs 4. हाँ, लोन पेयर्स 4 तो कभी हो ही नहीं सकता, सॉरी। बॉन्ड पेयर्स 4 एंड लोन पेयर्स आर 2, ये वाला केस पॉसिबल है ना। लोन पेयर्स 2 मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, सो मैक्सिमम आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। वो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं किया तो और 4 इलेक्ट्रॉन्स बचा है ना। those 4 electrons, if they are participating, if you can have bond pairs as 4. So this case is possible. Okay, हाँ, where will you keep the lone pair? यहाँ पे रखोगे या यहाँ पे रखोगे, या कहीं पे भी रखो, फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी हमने एक लोन पेयर को यहाँ पे दिखाया है ना। नाउ इनकमिंग लोन पेयर और एक लोन पेयर जो भी है, where will you place it? Will you place it in this position or will you place it here? B, सबसे ऊपर वाले में yes, ऑपोजिट में रखना पड़ेगा। कीप बोथ द लोन पेयर्स ऑपोजिट टू ईच अदर। इफ यू आर प्लेसिंग द लोन पेयर हियर, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री जैसा कुछ है ना।
So 90 degrees से better it is 180 degrees. If you are placing the lone pairs opposite to each other, the lone pairs will have minimum repulsive forces. What is the geometry again? Octahedral. Very good. What is the shape? Square planar. Square planar. Very, very good. यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर. While showing the shape, बस इतना ही दिखाएंगे. The geometry is octahedral and the shape is square planar. Okay. Tell me the bond angles. In this particular case, number of bond angles equal to 90 degrees. कितने हैं? 4. इसमें 4 रहेंगे. Very good. XCF4, ICL4 माइनस. क्योंकि ऊपर के लोन पेयर इनको नीचे पुश करने के लिए कोशिश किया, तो ये वाला लोन पेयर फिर से ऊपर पुश करेंगे, नेट में कोई कैंसिल हो जाएगा. So the bonds will remain in their positions and the bond angle will be equal to 90 degrees and the number of bond angles which are equal to 90 degrees are 4. Okay. XCF4, xenon का outermost electrons 8 है. 8 में से 4 electrons bonding में गया, 4 electrons बच गया. So 2 lone pairs. 2 lone pairs, 4 bond pairs. Number of electron pairs are 6. Octahedral geometry, and the shape is square planar. Okay. Last case, when the number of electron pairs are 7. उसमें पहला केस all of them are bond pairs. Lone pairs are 0. Representation is AB7. If you are having 5 electron pairs, तब हमने क्या किया? 3 को एक प्लेन में रख के और 2 bonds को perpendicular रखा. If you have 6 electron pairs, तब क्या किया? 4 को एक प्लेन में विजुलाइज करके और 2 को ऊपर नीचे किया. अभी 7 हो गया. अब क्या करेंगे? 5 को प्लेन में रखेंगे और ऊपर नीचे. Okay. So the geometry is called as pentagonal bipyramidal. A, B, B. Okay. Pentagonal bipyramidal. Tell me the bond angles. इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 90. Okay. What is the 90. bond angle between these two? 22.
very good, very good. It is 72 degrees, which is 360 upon 5 na. 360 upon 5, it is 72 degrees. Okay. Now, can you see two different sets of bond angles? Yes, sir. So again, we can define two different types of bonds. So these will be called as equatorial and this particular bond will be called as axial. Okay. Now tell me the relation between bond lengths. Axial bond का bond length ज़्यादा होगा या equatorial bond का bond length ज़्यादा होगा? हाँ, आप axial करके इसलिए कहा क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था. या axial is greater when compared to the equatorial. इधर क्या हुआ? The bond angle in the equatorial region is 120 degrees. वो ज़्यादा है. But the bond angle in the axial region is 90 degrees. वो कम है. So यहाँ पे repulsive forces ज़्यादा है करके we have increased this particular bond length such that the electron pairs will be far from each other. Okay. अभी इस केस में उल्टा हो रहा है ना. यहाँ पे bond angle कम है 72 डिग्री से. So यहाँ पे repulsive forces ज़्यादा है. यहाँ पे repulsive forces already relatively कम है. So इसका bond length बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा. इन दोनों के बीच में repulsive forces भी हमको कम करना है ना. So make this particular bond length greater when compared to the axial bond. समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे bond length बढ़ गया तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा and the repulsive forces will be decreased. So very important. इसमें उल्टा हुआ है. Bond length BL of equatorial is greater than bond length of axial. Okay. Okay. Last case इसी में B part. When the number of bond pairs are 6 and lone pairs are 1. AB 6L. इस पर्टिकुलर केस में जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री तो हम किस में अरेंज करेंगे? अगेन इट इज कॉल्ड एज pentagonal bipyramidal, and you will place the lone pair on the axial position. You will place the lone pair on the axial position because the angle is 90 degrees. यहाँ पे रखा तो the angle is 72 degrees. Better will be 90 degrees, right? But वो place करने के बाद वो ऐसा रहता नहीं है. There is some distortion. Distortion मतलब वो बिगड़ जाएगा वो shape, and it will lead to a shape called distorted octahedral. We will call that as distorted octahedral, बिगड़ा हुआ octahedral. So we won't be drawing that. Okay. So we will call the shape as, and in this context we will talk about only shape. Geometry के बारे में बात नहीं करेंगे. Okay. क्योंकि उस ज्योमेट्री में अरेंज किया हमने, बट वो डिस्टॉर्ट हो गया ना. सो उस ज्योमेट्री में वो है ही नहीं. So we will mention only the shape. The shape is distorted octahedral. Example XeF6. Xenon का outermost electrons 8, 6 electrons bonding में participate किया, 2 electrons रह गया. So you have 1 lone pair and 6 bond pairs. So the geometry which we try to arrange is pentagonal bipyramidal, but because of that particular lone pair there is some distortion, and the shape is called as distorted octahedral. Clear?
These are the only possible shapes and geometries which you can have in entire chemistry. Okay, whenever you have molecules, ऐसे यही shapes या geometries रहेंगे. And this particular theory is purely based on repulsive forces. Repulsive forces कम करने के लिए किस alignment में हमको इनको arrange करना पड़ेगा in order to maximize the stability. हमारा पूरा concern उसी के ऊपर है. Okay. And molecules ऐसा कैसे arrange होगा और ऐसा कैसे बन रहे, we will be understanding that in hybridization. So our next part is hybridization. We will continue that particular hybridization part in next lecture. We will discuss the question paper now. Okay. Which one of the following is electron deficient compound? For this you need to know the number of outermost electrons. Iodine के outermost electrons एक एक option देखते हैं देखो. Iodine का outermost electrons 7 है ना. Chlorine के outermost electrons भी 7 है. So both of them will be sharing 1 electron each. So उनका octet complete हो जाएगा. अगर octet complete हुआ तो it is not called as electron deficient compound. Nitrogen के outermost electrons 5 है. हर एक हाइड्रोजन को 1 चाहिए, 3 हाइड्रोजन के लिए 3 चाहिए. So 3 electrons of hydrogen will be participating in bonding. So nitrogen का भी 3 electrons का फायदा होगा. एक मिनट डिस्कनेक्ट हुआ. Yeah, everyone in the lecture. Okay. Okay. ये 27th क्वेश्चन समझ में आया ना. IF7 जो है outermost electron 7 है. All the 7 electrons are participating in bonding for 7 fluorine atoms. So now it has 14 electrons. Again octet से ज्यादा हो गया, super octet structure. अभी हमने डिस्कशन भी किया. In IF7 there are no lone pairs and you have 7 bond pairs. What is the geometry? 7 electron pairs है. Arrange कैसे करेंगे? Pentagonal bipyramidal. Very good. Pentagonal bipyramidal. 5 को प्लेन में रखेंगे, एक ऊपर नीचे. Pentagonal bipyramidal. Very good.
CO2 कार्बन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 4 है, 2 ऑक्सीजन से हर एक को 2 चाहिए, सो 2 ऑक्सीजन के लिए 4 लगेंगे. All the 4 electrons of carbon are participating in bonding, so you will be having फायदा of 4 more electrons. So 4 plus 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ. So question number 27 answer is D. देख रहे हैं ना मैं कैसे कर रहा हूँ? Okay, question number 28. Again, octet rule is not obeyed in BCl3. बोरान का आउटरमोस्ट शेल में 3 पार्टिसिपेट किया, 6 हुआ, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ. PCl5 फॉस्फोरस के 5 है, 5 के 5 यूज हो गया और 5 आया हमारे पास, सो 10 हो गया. सो वो सुपर ऑक्टेट हो गया. सो ऑक्टेट इज नॉट ओबेड इन B and C both. 29th, you just need to identify number of lone pairs. XeF2 lone pairs के साथ साथ उनका शेप्स भी निकालेंगे. XeF2 देखो एवरीवन, XeF2 xenon के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8. फ्लोरीन के लिए 1 चाहिए, 2 फ्लोरीन के लिए 2 लगेंगे, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा कितना? 6 मतलब 3 लोन पेयर्स हो गया. 3 लोन पेयर्स और 2 साइड एटम्स, सो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुआ. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब सबसे पहले आपको ऐसा सोचना है, इस 5 को किस ज्योमेट्री में लगाऊंगा. 5 है तो ज्योमेट्री क्या होगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिड. वेरी गुड. 3 को प्लेन में रख के ऊपर नीचे. और whenever you have lone pair, you should always place the lone pair in equatorial position for trigonal bipyramidal. Yes, so sir. equatorial में प्लेन में रखे, equatorial प्लेन में लोन पेयर को रखा तो ऊपर नीचे बॉन्ड पेयर है, सो शेप कैसे दिखेगा? लीनियर. ओके, सो हमेशा आप लोग वो माइंड पे करते रहना, माइंड में. नो नीड टू रिमेम्बर द VSEPR theory. VSEPR theory is highly logical. कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है. इसके लिए वो शेप होगा, इसके लिए वो शेप होगा. 5 है तो 3 ऊपर 3 प्लेन में ऊपर नीचे. 6 रहा तो 4 प्लेन में और 2 ऊपर नीचे. 7 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 प्लेन में ऊपर नीचे. 4 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेट्राहेड्रल. 3 है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स ट्राइगोनल प्लेनार 120 120 120. 2 ही है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स लीनियर. All the shapes and geometries are very 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 easy. XeF4 देखो, xenon का outermost electrons 8 है, 4 गया ना, 4 फ्लोरीन के लिए 4 बचा, मतलब 2 लोन पेयर्स. अभी देखना क्या है, 2 लोन पेयर्स और 4 साइड एटम्स है, सो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए ज्योमेट्री हम क्या रखेंगे? Octahedral. ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल. वेरी गुड. 4 प्लेन में ऊपर नीचे ऑक्टा, बट आपको क्वेश्चन पेपर्स में आपको ऑक्टाहेड्रल करके दिखता है, ठीक है, सो वो मार्क करना. स्क्वायर बाइपिरामिडल करके दिखा तो वो मार्क करेंगे, डोंट वरी. सो अभी ये लोन पेयर्स को 2 लोन पेयर्स है ना, और 2 लोन पेयर्स को जितना मैक्सिमम दूर पे रख सकते हो वैसा रखना पड़ेगा. सो दोनों को ऑपोजिट रखना है 180 डिग्रीज पे. Yes, sir. So what is the shape? Shape Square will be planar. square planar. So 2 lone pairs है उसमें. XeF6 1 lone pair and 6 side atoms, right? 1 lone pair and 6 side atoms. So 7 electron pairs हो गया. 7 electron pairs में से 5 ये करके ऊपर नीचे रखेंगे ना, ऊपर लोन पेयर रखने की वजह से कुछ तो डिस्टॉर्ट हो रहा है, hence it is called as distorted octahedral. So the shape will be distorted octahedral. Geometry के लिए बात नहीं करेंगे. 1 lone pair है. So answer is 3-1. Option A. Question number 30. Very easy. That is based on number of electrons. Isoelectronic पूछ रहे. N3 minus 21 plus 1 22 electrons. Nitrogen में 7 electrons है. ऐसा 3 नाइट्रोजन से, so 7 into 3 21 माइनस मतलब और एक इलेक्ट्रॉन दिया 22. क्रॉस चेक करो, सब में 22 ही रहेंगे. कुछ डाउट है तो मुझे बताओ.
सही है? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 31, CO CO3 2 माइनस एंड CO2। ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। क्या क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल्स? यू हैव CO, यू हैव CO2, यू हैव CO3 2 माइनस। CO जो है कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन दिस केस? 3. CO2, you need to know how to draw the structures. What is the bond order in this case? It is 2. CO3 2 minus में there is resonance. ये जो 2 नेगेटिव चार्जेस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पाई बॉन्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? You need to distribute one bond, ये जो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो है 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हर एक को कितना आएगा? 1/3 आएगा। ऑलरेडी उनके पास एक बॉन्ड तो है 1 ही है, plus 4 by so it 3. will be 1 plus 1/3, 4/3. You need to mark them in the order of bond order. क्या? Bond length. What is bond order? Number of bonds between two atoms. जितना ज्यादा बॉन्ड्स रहेंगे दो एटम्स के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। सो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो सबसे लीस्ट बॉन्ड लेंथ CO में रहेगा। उसके बाद CO2 में 2 is greater than 4/3 ना? ओके, कहाँ चले गए लोग? एक बच्चे होते ही चले जाते हैं। ठीक है, सो 2 is greater than 4/3। सो उसके बाद इसमें बॉन्ड लेंथ कम होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ CO3 2 माइनस में होगा। समझ में आ रहा है? सो द आंसर इज CO लेस देन CO2 लेस देन CO3 2 माइनस। किस किस ने मार्क किया, सही मार्क किया ये आंसर? क्वेश्चन नंबर 31। Yes, sir. ओके, गुड गुड। ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर्स? साथ के साथ हो रहे हैं ना बॉन्ड में? सो यू हैव 7 बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन नंबर 33, नॉट एन एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। BF3 बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन, सो 6 ही हो रहे हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर। XeF6 ज़ेनॉन बॉन्डिंग में जा रहे, मतलब ऑक्टेट रूल तो कंपलसरी तोड़ेगा ही है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है उसके पास। ClO3 क्लोरीन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है। ऑल द 7 नहीं, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि हर एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए। ओके, सो ClO3 में भी हो रहे हैं। सो बचा क्या है? SnCl4। वो ClO3 माइनस देना चाहिए था उनको। ClO3 वो प्रिंट नहीं हुआ, इट इज ClO3 माइनस। ठीक है, SnCl4। Sn belongs to carbon family, 4 valence. so all the 4 electrons participating in bonding, so it is not an exception to octet rule. Okay, question number 34, ये आप लोग वो लोन पेयर्स निकाल के कर सकते हो। मॉलिक्यूलर शेप्स, SF4 सल्फर का आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 6, 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा, एक लोन पेयर। CF4 all the 4 electrons are participating in bonding, 0 lone pairs. XeF4 8 में से 4 पार्टिसिपेट किया, 4 बचा, 2 lone pairs, so 1 0 2 lone pair of electrons respectively. उनका मॉलिक्यूलर शेप्स भी डिफरेंट ही रहेगा। आप लोग कर सकते हो। CF4 will be tetrahedral, SF4 एक लोन पेयर, 4 साइड एटम्स, 5 हो गया। it will be the shape is seesaw. SF4 shape is seesaw. XeF4 2 lone pairs, 4 side atoms, the shape is square planar. ओके, ये कर सकते हो ना? प्रैक्टिस करना, बहुत सारे कल के लेक्चर में भी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स करेंगे हम, डोंट वरी। इन द टुमारोज लेक्चर वी विल सी हाउ एग्जैक्टली द शेप्स आर फॉर्म्ड। शेप्स क्या होता है हमको पता चला, बट वो शेप्स कैसे बनेंगे वो देखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, लोन पेयर्स मार्क कर सकते हो? एनी डाउट? 36, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स मार्क कर सकते हो?
I3 माइनस था वो, फिर से नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट टाइम मिस हो गया, I3 माइनस होता है। 7 में से 7 + 1 8 हो जाता है। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किया तो 6 बच गया, 3 लोन पेयर्स। 37 मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के साथ ही करना है, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड्स है उतना स्टेबिलिटी है। ओके, सो ऑक्टेट एक्सपेंड करवाएंगे, नो इश्यू। सो आंसर इज ए। थर्टी एट को बहुत सारे लोगों को ये गलत लगा। They are asking about bond order of CLO. Again, this is the case of resonance. Everyone, ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस। ClO3 माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस। ClO2 माइनस, डबल बॉन्ड O, O माइनस। ClO माइनस, ये वाला। अभी बॉन्ड ऑर्डर्स निकालो। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इट विल बी 1 प्लस 3 बॉन्ड से 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया, हर एक को कितना आएगा? 3/4। ओके, एवरीवन इन द लेक्चर। 3 बॉन्ड से 4 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हर एक को 3/4 आएगा। इधर 1 प्लस 2 है, 4 में डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो हर एक को कितना आएगा? 2/3। इधर 1 प्लस 2 के बीच में 1/2, इधर तो 1 ही है, सो इधर द बॉन्ड ऑर्डर 3/4 इट इज 0.75। 2/3 कितना होता है? 0.66 है क्या? दिस इज 1 प्लस 0.5। सो बेटर क्या रहेगा? हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? ClO4 माइनस का, उसके बाद ClO3 माइनस, उसके बाद ClO2 माइनस, उसके बाद ClO माइनस। So the answer is A. There is nothing wrong with the question. Answer is A. Okay, is this clear? Yes. Question number 39. Question number 38 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। Question number 39. Option D. Yes, sir. Yes, sir. Question number 40. Maximum number of lone pairs. You can do it. Okay. Total number of lone pairs I3 माइनस में आयोडीन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज 2, 7 + 1 8 हो गया। 2 आयोडीन एटम साइड एटम जैसा हो गया। 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 - 2 6 मतलब 3 लोन पेयर्स में 3। 42 देखो, वेरी इंटरेस्टिंग है। देयर इज चेंज इन ज्योमेट्री करके बोल रहे हैं। इनिशियली BF3 में बोरॉन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है। 3 के 3 पार्टिसिपेट कर लिया। देयर आर नो लोन पेयर्स, सो इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इनिशियली देयर आर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ना। अभी BF4 माइनस में यू नीड टू टेक द चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। बोरॉन में 3 है, 3 + 1 4 हो गया। 4 के 4 फ्लोरीन्स के लिए लगेगा। 4 बॉन्ड पेयर्स, सो क्या हो गया? टेट्राहेड्रल हो गया, चेंज हो गया ना। इधर देखा तो ज्योमेट्री NH3 में भी टेट्राहेड्रल है, NH4 पॉजिटिव में भी टेट्राहेड्रल है। SO2 आई थिंक दैट इज आल्सो टेट्राहेड्रल। 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। नो, कौन सा है वो? V शेप है ना। सल्फर का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है। 6 में से 4 पार्टिसिपेट किया, 2 बचा। 1 लोन पेयर, 2 साइड एटम्स 3 है, सो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। SO3 में भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। शेप चेंज हो रहे, बट दे आर आस्किंग अबाउट ज्योमेट्री। H2O टेट्राहेड्रल, H3O पॉजिटिव भी टेट्राहेड्रल। क्रॉस चेक करो। H3O पॉजिटिव टेट्राहेड्रल है क्या? 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव मतलब 5 हो गया। 4 3 1
टेट्राहेड्रल है सर। दो मिनट, it got disconnected again. Yeah. 43 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना? समझ में आया ना? सर 41 एक बार 41 ना, I3 माइनस। देखो I3 है ना, एक आयोडीन को सेंट्रल एटम में कंसीडर करो, बचा हुआ 2 आयोडीन साइड एटम्स हो जाएगा। आयोडीन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है, माइनस का मतलब 8 हो गया। 2 आयोडीन साइड एटम्स है, हर एक आयोडीन को 1 चाहिए, 2 आयोडीन को 2 चाहिए, सो 8 में से 2 चला गया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स बचा। 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 लोन पेयर। सर पूरे साइड साइड आयोडीन एटम को देखे तो 9 होंगे ना सर? क्या 3 आयोडीन्स का देखे तो 3 आयोडीन्स का क्यों देखोगे? और 3 में से एक आयोडीन सेंट्रल, एक ही रहेगा सेंट्रल, 2 आयोडीन साइड में देखेंगे। सर उन्होंने टोटल नंबर बोला ना, लेकिन वही whenever you see for lone pairs, total number of lone pairs जब भी पूछेंगे, इसका मतलब यही होता है सेंट्रल एटम को ही रिफर करते हुए। we will never see for the side atom. ओके सर। ओके। इसलिए लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये स्टेटमेंट बताया, ऑलवेज यू नीड टू सी फॉर द सेंट्रल एटम। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा एम्बिग्विटी जैसा आया है। ओके, होने बचा हुआ आयोडीन्स में भी कितना है? 3 9 मार्क किया क्या आंसर? यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन के हिसाब से वैसा हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 43, पिरामिडल शेप, Cl 7 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के लिए 2, फ्लोरीन के लिए 2, फ्लोरीन्स के लिए 2, 4 हो गया। सो 6 में से 4 चला गया, 2 बचा, 1 लोन पेयर एंड 3 साइड एटम्स, टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर हो गया तो इट विल बी पिरामिडल। आंसर A is the right answer. यस सर। बचा हुआ शेप्स भी बाद में आप लोग निकालो। क्वेश्चन नंबर 44, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, NH3 पिरामिडल हो, NH3 टेट्राहेड्रल है, बट एक लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, so it will be less than 109. CH4 में there is no lone pair, so it will be perfect tetrahedral and the bond angle will be 109.5 degrees. PH3 में भी टेट्राहेड्रल है, बट लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। H2O भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, बट लोन पेयर्स की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। सो आंसर इज CH4। 44 इज अ गुड क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। 45, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किस में रहता है? HNO3 में रहता है ना? HNO3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है ना सबको? You need to know how to draw the structures, Lewis dot structures, very important. Question number 46, ये अभी आया था ये वाला क्वेश्चन, ये जैन वाले मेंस के एग्जाम में आया है क्वेश्चन। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन रहेगा? आयन मतलब क्या है?
आयनिक बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड तो आयन आयन ग्रेटर, उसके बाद आयन डाइपोल, एंड उसके बाद डाइपोल डाइपोल, आसान है। यस 47 what is meant by Lewis? One which can accept lone pair of electrons is called as Lewis acid. Lewis base is one which gives lone pair of electrons. A coordinate covalent bond is a bond between Lewis acid and Lewis base. देखो BCl3 बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में तब 6 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग के बाद, सो और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट कर सकता है, हेंस इट इज लुईस एसिड। AlCl3 अगेन एल्यूमिनियम बॉन्डिंग करने के बाद उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इट कैन एक्सेप्ट 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट इज द लुईस एसिड। आंसर इज 2। 48 SnCl4 लिक्विड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन ऑफ SN4 पॉजिटिव। बोल सकता हूं, electron clouds of Cl minus are strongly polarized to envelop the cation. Envelop the cation मतलब उसके साथ overlap हो रहा है, covalent character आ रहा है, covalent character होने की वजह से वो covalent liquid है। सी ऑप्शन क्यों नहीं आता? Molecules are attracted to one another by strong van der Waals forces. ये reason नहीं है ना, strong करके van der Waals forces करके बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस जैसा रहा तो नो तो और स्ट्रक्चर सॉलिड भी हो सकता है, बट द रीजन फॉर दिस इज उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से वो लिक्विड जैसा, जो सॉलिड जैसा होना चाहिए था, आयनिक बॉन्ड SnCl4 SN मेटल है ना, मतलब वो उसमें रहा बट उसका मेटलिक कैरेक्टर है। So if you're considering that as an ionic bond, क्वेश्चन वैसा पूछा गया है। ओके, और सी समझ में आया, तुम्हारा डाउट मुझे समझ में आया, बट बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके सी में ऑलरेडी हमने कोवलेंट करके मान लिया, कोवलेंट मान लिया तो ऑब्वियसली वो लिक्विड या गैस जैसा रहेगा। सो लिक्विड जैसा होने के लिए वो वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है करके तुमने लिक्विड मार्क किया, सही है, तुम्हारा सोच सही है, आई अप्रिशिएट दैट, बट बी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द ऑप्शंस। पोलराइजेशन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं ना, मतलब चार्जेस इतना ज्यादा होने पर भी SN4 पॉजिटिव Cl माइनस आयनिक बॉन्ड सोच के वो लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये आसान है ना, लेफ्ट टू राइट मेटालिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, sorry, left to right non-metallic character increases, non-metallic oxides are acidic, so acidic strength increases, so answer is D। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद ही सल्फर आता है। ओके, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 50 आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर इट इज बेस्ड ऑन पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन, सब में Cl ही है, सो Be2 पॉजिटिव का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो आंसर इज ए। यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू, आप लोग का एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, थैंक यू।